اس تیل کے ساتھ اللہ کے امر کی حفاظت، اس تیل کے ساتھ قرآن کا نور، اس تیل کے ساتھ قرآن کی برکت، اس تیل کے ساتھ قرآن کی شفا، اس تیل کے ساتھ وحی کی برکت، اس تیل کے ساتھ جبریل کی آمد، اس تیل کے ساتھ کملی والی کی آمد، اس تیل کے ساتھ اللہ کا وجود، اس تیل کے ساتھ اللہ کا نور، اللہ کا بصارت، اللہ کا طاقت، قوت، یہ سارا نظام اس تیل کے اندر موجود ہے۔ میرے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تھے وہ تیل بہت استعمال کرتے تھے، میرے آقا بہت تیل استعمال کرتے تھے، بہت زیادہ، اور ان کے ماننے والے آل رسول، اصحاب رسول سر میں تیل لگاتے تھے۔ میرے حضور تیل اتنا استعمال کرتے تھے، تیل اتنا لگاتے تھے کہ آپ کے سر مبارک پہ ایک کپڑا ہوتا تھا، پہلے ایک کپڑا ہوتا تھا، وہ تیل سے تر رہتا تھا، اس کے اوپر ٹوپی ہوتی تھی اور میرے حضور کی پگڑی ہوتی تھی، وہ ایک کپڑا ہوتا تھا، اتنا تیل لگاتے تھے اور ایک چھوٹا سا کپڑا باندھ دیتے تھے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ان کا تجربہ، وہ دن میں 2 مرتبہ سر پہ تیل لگاتے تھے، حوالہ میرے سامنے موجود ہے۔ کیوں؟ آج کی دنیا میں وقت سے پہلے نظریں ختم، وقت سے پہلے جوانیاں ختم، وقت سے پہلے جھریاں، وقت سے پہلے چہرے کا حسن، چمک، جمال ختم۔ جب سے ہم نے سر کی دنیا پہ کیمیکل استعمال کرنا شروع کیا ہے، ہماری زندگی، ہماری جوانیاں گل گئی ہیں۔ میں ایک سفر میں تھا تو میرے ساتھ ایک صاحب تھے، نئے نئے مالدار ہوئے تھے، انہوں نے ایک بوتل نکالی، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہہ رہے میں یہ بوتل اپنے جسم پہ لگا رہا ہوں اور سر پہ لگا رہا ہوں۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا تو کیمیکل ہیں، اب کیا کر رہے ہیں؟ کہ نہیں جی، فلاں کمپنی، فلاں ملک، فلاں دنیا، فلاں جگہ سے یہ چیز آئی ہے۔ میں نے کہا چھوڑ دے۔ اچھا، میں نے کہا اس کے اندر ایک لنک ہوگا کہ اس کے آفٹر ایفیکٹ، اس کے نقصان دہ اثرات کیا ہیں، آپ ذرا چیک کریں۔ اس کے اوپر ایک چھوٹا سا لنک تھا، میں نے کہا اس کو نیٹ پہ کھولے۔ اس نے نیٹ پہ کھولا، وہ تو لنک چھوٹا سا تھا، نیٹ پہ دنیا تو بے شمار تھی، اس میں فائدے 2 لکھے ہوئے تھے، 98% نقصانات ہی نقصان لکھے تھے۔ میں نے کہا اس کے مقابلے میں زیتون کا تیل، ناریل کا تیل، سرسوں کا تیل، اب اس کے اٹھاؤ، نیٹ پہ نکالو، اس کے فائدے کتنے ہیں، نقصان کتنے ہیں، پتہ چلا کوئی نقصان ہے ہی نہیں، فائدے ہی فائدے۔ فطری زندگی سے محروم ہو گئے، فطری دنیا سے محروم ہو گئے۔ اور میرے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے کملی والے کی زندگی میں تیل لگانا سر پہ، وہ آپ سرسوں کا تیل لگائیں، وہ زیتون کا تیل لگائیں، وہ ناریل کا تیل لگائیں، وہ بادام روغن لگائیں، وہ دیسی گھی لگائیں، دیسی گھی بھی گائے کا لگایا جاتا ہے، جو چیز لگائیں۔ ناریل کا تیل یہی ہے، فوراً جذب ہو جاتا ہے، نشان نہیں چھوڑتا، بہترین جذب ہو جاتا ہے۔ اور ناریل کے تیل میں کیا کریں، کوئی چھوٹا سا عطر پڑا ہو، اس کے 1-2 قطرے ڈال دیں، تجربہ کر لیں، زبردست خوشبو ہی خوشبو ہے۔ ہاں، ناریل کا تیل لے، اس میں 2-4 عطر کے قطرے ڈال کے ہلا لے، لاجواب بن جائے گا۔ اور اگلی بات، میرے حضور جب بھی تیل لگاتے تھے، بھوؤں پہ تیل لگاتے تھے، اور پہلے دائیں بھاؤں پہ تیل لگاتے تھے جسے ابرو کہتے ہیں، پھر بائیں تلے پہ حضور کیا کرتے تھے، ہتھیلی، بائیں ہتھیلی پہ تیل لیتے تھے، شہادت کی انگلی سے پہلے دائیں بھووں پہ پھر بائیں پہ تیل لگاتے تھے، پہلے، سب سے پہلے، اور پھر آنکھ کے اوپر تیل لگاتے، پہلے دائیں پھر بائیں۔ آج پوری دنیا اور سائنس، چہرے کے حسن و جمال کی سائنس، منیاری کہتے تھے، آج کاسمیٹک کہتے ہیں۔ منیاری لفظ نہیں ہے، لفظ ہے منہاری، عورتیں من ہار جاتی تھی اپنی، جسے پہلے منہاری کہتے تھے، منیاری کہتے تھے، اور اس کے بیچنے والوں کو منیار کہتے تھے، ٹھیک، منیار کہتے تھے، آج اس کو کاسمیٹک کہتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اصلی حقیقت اور سچ میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ایک اصلی حسن و جمال ہے، ایک اصلی حسن و جمال ہے، اور ایک میک اپ کا حسن و جمال ہے، اس میں سچ میں اور حقیقت میں فرق ہی نہیں ہوتا۔ یہ حضور کی سچی سنتیں میرے آپ کو چھوڑ دی ہیں۔ جب سے سر پہ تیل لگانا چھوڑا،
पांव के तलवों में तेल लगाना छोड़ा, सर पे तेल लगाना, पांव के तलवों और पिंडलियों और टखनों पे तेल लगाना। पता नहीं मुझसे क्या होगा, गलती हुई या खैर हुई। अपनी एक मैं बताता हूं बात। मैंने एक तहकीक की और एक पोस्ट बना के डाल दी कि पांव के तलवे में तेल लगाने के ये फायदे हैं। चंद साल पहले जो दुनिया ने उसको देखा और जो दुनिया ने उसके फायदे बताए, आज भी वो पोस्ट उठाएं, आप उसके फायदे पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। सिर्फ पांव के तलवों को, पिंडलियों को तेल लगाने के फायदे, आप फायदे पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। अबरू पे तेल लगाना। अब सुने, मैंने एक बात आपको बताई थी, नाखून के नीचे शयातीन जिन्नात, काले जिन्नात रहते हैं। और साइंस क्या कहती है, हमारे नाखून के नीचे जो हमारे पेट के कीड़े हैं, इंटेस्टाइन वर्म्स, उसके अंडे होते हैं और जो खाने में शामिल हो जाएं, कभी बंदा बीमारियों से नहीं निकल सकता। और रूहानियत की साइंस कहती है नाखून के नीचे शैतानी चीजें होती हैं, और रूहानियत की साइंस कहती है भवों के अंदर फरिश्ते होते हैं, भवों के अंदर फरिश्ते होते हैं। और मेरे कमली वाले क्या करते थे तेल लगाते हुए? सुभान अल्लाह, सारे सुभान अल्लाह कहें कि बाएं हथेली पे तेल रखते थे, पहले अपनी भवों पे लगाते थे, दाएं थोड़ा सा, फिर बाएं, फिर अपनी आंखों पे। और आज की साइंस कहती है पलकों का मसाज करें, आज की साइंस कहती है भवों का मसाज करें तेल से। क्यों? अगर ये करेंगे, ऐनक, नजर, वक्त से पहले बाल सफेद, याददाश्तें, डिप्रेशन, टेंशन, जहनी उलझाव, खिंचाव, तनाव, ये चीजें खत्म हो जाएंगी अगर ये करेंगे कि अगर आप भवों पे तेल लगाएंगे और पलकों में। और मेरे हुजूर ने आज से सदियों, 1400 साल से ज्यादा पहले ये टोटका फरमा दिया था और बता दिया था कि अपनी भवों और पलकों को तेल लगाएं। उसके बाद मेरे हुजूर अपने सर पे तेल लगाते थे और हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़ के लगाते थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, एटमी साइंसदान इस मुल्क के मोहसिन, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन कहें सारे, फरमाने लगे कि एक शख्स मुझे मिला 90-96 साल की उम्र में, ना बीमारी, ना तकलीफ, ना दुख, ना रोग, कुछ भी नहीं, सही सलामत, सेहतमंद, बिल्कुल ठीक। कहा उसकी इस सेहत और सलामती का राज पूछा तो कहा कोई दाना, कोई कतरा ऐसा नहीं मेरे मुंह में जाए। दाना, दाने से मुराद ग़िज़ा, कतरे से मुराद हर मशरूब, लिक्विड चीज, कतरा पानी है, दूध है, शरबत है, कोई दाना और कतरा मेरे अंदर नहीं गया, आज तक नहीं गया कि मैंने बिस्मिल्लाह न पढ़ी हो। बस मेरी सेहत का राज यही है। हर दाने हर कतरे में मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी, और हर दाने और हर कतरे में मेरी जिंदगी में एक नई जिंदगी आई, मेरी जिंदगी में एक नई रूह आई, और मेरी जिंदगी में एक नई ताजगी आई। ये जिन्नाती शैतानी चीजें टूट रही हैं, ये आपके इर्द गिर्द बुलेट प्रूफ निजाम बन रहा है, ये मैं बताना चाह रहा हूं। मैं जब बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ता है, काली दुनिया कट जाती है, काले जिन्नात टूट जाते हैं, शैतानी चीजें जो बीमारी, तकलीफ, परेशानी में हमें नुकसान देना चाहती हैं वो खत्म हो जाती हैं। एक हिफाजत का अनोखा हिसार, एक हिफाजत का अनोखा हिसार, एक हिफाजत का अनोखा हिसार हमारे इर्द गिर्द आ जाता है। एक हिफाजत का अनोखा हिसार हमारे इर्द गिर्द आ जाता है, और हैरत का निजाम यह है कि अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है। वो कहने लगा जब मैं ग़िज़ा, कोई कतरा या कोई दाना बिस्मिल्लाह के बगैर आज तक मेरे अंदर नहीं गया। और मेरे हुजूर जब तेल लगाते तो बिस्मिल्लाह पढ़ते थे, बिस्मिल्लाह पढ़ते थे। अब सुने जो मैं चीज सुनाने लगा हूं आगे, जो मैं आपको कहता हूं कि बुलेट प्रूफ गाड़ी हमारे पास आखिर क्यों नहीं है, हमारे जिस्म के इर्द गिर्द हिफाजत का निजाम क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। अब मेरे आका का फरमान सुने, फरमाया हदीस में है जो बगैर बिस्मिल्लाह के तेल लगाएगा 70 काले जिन्नात उसके साथ शरीक हो जाते हैं। 70 काली दुनिया, काली चीजें, काले रोग उसके साथ शरीक हो जाते हैं, शरीक हो जाते हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया जो सुने, अब जो
फरमाया जो बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े तेल लगाए। अच्छा, हमने ये समझा है कि हमारे ऊपर जादू इंसान करते हैं। देखें, जब मैंने कोई काला बकरा, काला मुर्गा, माल, चीजें नहीं लेने, मैं खत जमा करके बैठा था कि फलां ने 7 लाख को दिए, उसको 70,000 दिए, उसको 3 लाख दिए, उसको इतने दिए, उसको इतने दिए। आपको याद है मैंने एक दफा खड़े होकर आपसे पूछा था कि आज तक मुझे किसी का नाम ना बताओ, किसी को, पीर को कितने पैसे दिए। आप में से बेशुमार लोगों ने बताया था इतने लाख, इतने हजार, इतनी चीजें दिए। मैं सोचने लगा कि हमने दिए इतने पैसे, इतना निजाम, लेकिन अगर ये एक छोटे से टोटके पे भी अमल कर ले, अपना नुकसान तो हम खुद करते हैं। हिफाजत का निजाम हम छोड़ देते हैं। हम समझते हैं कि शायद सारे इंसान जादू करने पे बैठे हैं। नहीं नहीं, हर बंदे का यह काम नहीं है। अगर कोई कहता है ना तो वो शायद भूल रहा है। हमारे पास जादू करने वाली भी और ताकतें भी हैं। वो शैतानी ताकतें, वो जिन्नाती ताकतें हैं, वो हमारे ऊपर जादू करती हैं। अब मेरे आका ने फरमाया जो बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर तेल लगाता है 70 काले जिन्नात उसके साथ शरीक हो जाते हैं। 70 काले जिन्नात। अच्छा, काले जिन्नात हमें नजर नहीं आते, नजर आते हैं। ये पिछले साल मरी में वाकया हुआ। बर्फबारी के दौरान गाड़ियां फंसी, गाड़ियों में बैठे बैठे लोग मर गए। और बात क्या आई? सिर्फ एक बात आई जी, ऑक्सीजन खत्म हो गया था, कार्बन ज्यादा हो गया था, बंदे मर गए। ऑक्सीजन देखा है किसी ने कभी? जिसने ऑक्सीजन आज तक आंखों से देखा है वो खड़ा हो जाए, जिसने कार्बन आंखों से देखा वो भी खड़ा हो जाए। ऑक्सीजन नजर नहीं आती, अंग्रेज कहता है, हम कहते हैं। कार्बन नजर नहीं आती, साइंसदान कहते हैं है। मेरे कमली वाले ने फरमाया बरकत उठ जाती है, रहमत हट जाती है, काली चीजें उसमें शामिल हो जाती हैं। मेरे आका का फरमान सच और हक है, इंशाअल्लाह है, सच है। मेरे हुजूर ने फरमाया कि जो तेल लगाता है बगैर बिस्मिल्लाह के। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैंने बंदे से पूछा उम्र का राज, कहा कोई कतरा और कोई दाना मेरे अंदर आज तक ऐसा नहीं गया जो बिस्मिल्लाह के बगैर गया हो। आज भी इंशाल्लाह हम फैसला करते हैं, हम भी ये इंशाल्लाह अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे। हाँ, छोटा सा अमल है, छोटा सा अमल है, कोई पाबंदियां नहीं है इसके लिए। हम भी इंशाल्लाह अपनी जिंदगी में इसको जरूर शामिल करेंगे। हम समझते हैं कि हमारे पर जादू कोई दुनिया भी करती है। मेरे पास जिंदगी गुजर गई इसी शोबे से। आज भी तालिब इल्म हूं, कोई पहुंची सरकार नहीं हूं। आज भी तालिब इल्म हूं, कोई पहुंची सरकार नहीं हूं, और तालिब इल्म ही रहूंगा, सीखने वाला। लेकिन ये शैतानी और जिन्नाती जादू इंसानी जादू से कहीं ज्यादा ताकतवर है, याद रखिएगा। कहीं ज्यादा ताकतवर है, याद रखिएगा। बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत ताकतवर है, और हद से ज्यादा ताकतवर है। क्या ख्याल है आज के बाद? फिर अब मैं एक तेल बताता हूं जो तेल का तेल है, टॉनिक का टॉनिक है, इलाज का इलाज है, और जिंदगी की जिंदगी है। एक तेल ले ले, सरसों का तेल, नारियल का तेल, जैतून का तेल, कोई भी आप ले ले, जितनी मिकदार में ले ले। घर वाले मिल बैठ के 2, 4, 5, 6 और हो घर वाले, ये काम ठेके पे नहीं कराना। इतने पैसे ले ले तो कर दे, ना कराना। इसलिए किताबों में आता है अगर तेरा बाप फौत हो जाए और तू इस काबिल है तो अपने बाप या मां का जनाजा खुद पढ़, खुद पढ़। जो तू दर्द से दुआएं मांगेगा वो कोई और नहीं मांग सकता। क्यों? बाप तेरा मरा है, उसका तो नहीं मरा। जो तू दर्द से दुआएं मांग सकता है और कोई नहीं मांग सकता। मेरी आपसे दरखास्त है ये खुद पढ़ें। उधर से बंदे बोला, उधर से बंदे बोला, उसने कहा जी मैंने 1.25 लाख करवाया फलां चीज का, मुझे तो समझ नहीं आती। अब रखें सामने तेल, आज मैं बुलेट प्रूफ आपको बता रहा हूं। रखें सामने तेल और 1001 दफा सूरत कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ ले।
ये सूरत कुल या अय्युहल काफिरून का तर्जमा आज जरूर उठा के चेक किएगा, आप अपने मोबाइल पे चेक कर लीजिएगा, अब कल देखिएगा, परसों देखिएगा। सूरतुल काफिरून, अल्लाह पाक ने ना काली चीजें, काले लोगों को चैलेंज किया है। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ता, चैलेंज किया है। और जो आखिरी आयत है, आखिरी आयत जो कुल या अय्युहल काफिरीन की है, वो बताऊं क्या है? लकुम दीनुकुम वलिय दीन। जा, तेरा दीन अपना है, मेरा दीन अपना है। तुझे तेरी अदा पसंद, मुझे मेरी अदा पसंद। तुझे खुद ही पसंद, मुझे खुदा पसंद। तुझे खुद ही पसंद, मुझे खुदा पसंद। ये बड़ी ताकतवर सूरत है, ये बहुत ताकतवर सूरत है। मैं तो सही बात है बाज़ वक़्त हैरान होता हूं। किस बात पे हैरान होता हूं? मैं अपनी बात को फिर दोहरा रहा हूं। बाज़ वक़्त इल्म की कमी, नावाकफियत की वजह से कहते हैं, इल्म की कमी नावाकफियत की वजह से कहते हैं कि अंग्रेजों पे जादू जिन्नात नहीं होते। मैं फिर कह रहा हूं, अंग्रेज जितना जादू जिन्नात नजर बद इन चीजों को मानते हैं, उसके लिए हमारी नेट पे पड़ी जादुई लाइब्रेरी में सैकड़ों किताबें अब तक जमा कर चुके हैं, मजीद कर रहे हैं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। जा, तुझे तेरा दीन पसंद है, मुझे मेरा दीन पसंद है। तुझे तेरी अदा पसंद है, मुझे मेरी अदा पसंद है। मुझे कमली वाली की गुलामी पसंद है, मुझे मेरे आका की गुलामी पसंद है। मैं लाख गुनाहगार हो जाऊं पर मेरे दिल में आका की गुलामी, लाख गुनाहगार हो जाऊं पर मेरे दिल में आका की गुलामी आज भी है, कल भी रहेगी और मौत तक रहेगी इंशाअल्लाह। इस सूरत को समझें, इस सूरत में ताकत, इस सूरत में तासीर क्या है। इस सूरत को ना मिल बैठ के 1001 बार अव्वल आखिर दरूद पाक हर दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 पढ़े और तेल पे दम कर ले। एक दिन में खुद पढ़ना है पढ़ ले, थोड़ा पढ़ ले, 2 दिन में, 3 दिन में, अगर आप अकेले हैं इसको पढ़ें। अब इसको घर के इस्तेमाल में लाएं, खाने में, पीने में, पकाने में, कुकिंग में, जिंदगी के इस्तेमाल में, इसको घर के इस्तेमाल में ले आए। भवों पे लगाएं जरूर, पलक पे लगाएं जरूर, नाक में लगाएं जरूर, कानों के ऊपर लगाएं जरूर, नाक में लगाएं जरूर, खाएं पिएं पकाएं जरूर। फिर जिंदगी में हिफाजत का निजाम देखें। याद रखिएगा, अल्लाह का निजाम सच्चा, अल्लाह के हबीब का निजाम सच्चा। ये पड़ा हुआ था तो मुझे चाहते ही ना उन्होंने हाथों में ऐसे दिया, मैंने यूं 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 मल लिया। हाँ ठीक है, खैरियत से आप बैठे। मैंने कहा ये क्या था? जानबूझ के पूछा। कह रहे ये सैनिटाइजर था हाथों में, ये पूरा लोशन हाथों में लगा लो। मैंने कहा जरासीम मुझे नजर तो नहीं आया, कोई घोड़ा हो, खोता हो, गधा हो, कोई कुत्ते की तरह हो, कोई उल्टा हो, सीधा हो, नजर तो नहीं आया। कह जी ये नजर नहीं आते। अच्छा, मैंने कहा सच है, मैं इसका इनकार कहां कर रहा हूं, जरासीम का इनकार कहां कर रहा हूं। हिफाजत, याद रखिए, अगर मेरे आका कमली वाले ने हिफाजत का हुक्म दिया है। क्या दिया? मैंने कहा नारियल का पानी पीने वाले की नजर ऐसी होती है जैसे शाहीन की नजर है। शुगर के मरीजों का इलाज, हाई ब्लड प्रेशर का इलाज, नारियल का पानी। एक चीज ज़हन में रखिएगा, आलेजुल अमराज़ बेअकाकीर मुल्क ही, जो बोटी जिस इलाके में पैदा होगी, ये नुक्ता मेरा याद रखिएगा, वो उस इलाके के अमराज का इलाज है, उस इलाके के मर्जों का इलाज है। नारियल का पानी और नारियल हमारे दस्तरखान की जीनत बन जाए। चलो एक और फायदा बताता हूं। मैं सखर में था तो मैं जहां नारियल हो तो जरूर खाता हूं। पेट्रोल पंप पे गाड़ी में फ्यूल ले रहे थे, पेट्रोल ले रहे थे, तो वहां एक नारियल वाला खड़ा था। हमारे सिंधी अहबाब थे, अंदरून सिंध का मेरा सफर था। तस्बीह खाने की निस्बत से, वहां तस्बीह खाने से जितने भी निस्बत रखने वाले हैं, तो मेरा सफर था। मैंने कहा इसे नारियल लीजिएगा। उसने नारियल दिया। हमारे साथ एक साहब बैठे हुए थे, कहने लगे कि हमारे अलीगढ़ में, हमारा सारा खानदान है अलीगढ़ में, हमारे वहां मशहूर है, जो ये चाहता है कि उसका पेट ना बढ़े, जो चाहता है उसकी चर्बी ना बढ़े, और जो ये चाहता है कि वो मोटापे में ना जाए, और जो ये चाहता है कि उसका कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, यूरिक एसिड ना बढ़े, वो खाने के बाद या खाने से पहले नारियल का एक टुकड़ा खा ले, वो ठीक हो जाता है। और बेशुमार लोगों को मैंने बताया बीमारियां नहीं होती। एक और फायदा बताता हूं नारियल को, जिसको निक्सीर ना रोकती हो, निक्सीर जितनी पुरानी हो और पानी की तरह खून बहता हो नाक से, नारियल के एक टुकड़ा लेके रात को भिगो दे। खुश्क है,
तर है, रात को भिगो दें, सुबह उठ के उसको खिला दें, ऊपर से वही पानी पिला दें, चंद दिन चंद हफ्ते, जिंदगी में फिर कभी नक्सीब नहीं आएगी इंशाअल्लाह। मैं बाज़ औक़ात रोटी की जगह पे नारियल खाता हूं। रोटी खानी है ना, तो अपने रोटी का हिसाब लगाएं। चलो कोई अराई हो, कोई शेख हो, इतना बड़ा किफायत शार आदमी हो, उसे कह तो रोटी का हिसाब लगा, रोटी का हिसाब लगा, वो रोटी का हिसाब लगाए, भाई मेरी रोटी खर्चा लाना ले जाना इतना पड़ता है और इतने में मेरा पेट भर जाएगा। उसको कहें एक नारियल खाने की तरह पेट भर जाएगा। फिर वो नारियल पेट के कीड़ों का इलाज है, कब्ज का इलाज है, बवासीर का इलाज है। वो जो फ्रेश नारियल तूने खाया है, ताजा नारियल तूने खाया है, पेट बढ़ने का इलाज है, वेट बढ़ने का इलाज है, बबल्स गैस जो तबखीर बादी होती है, इसका इलाज है। अब बोले कितनी जबरदस्त चीज है, बहुत बाकमाल चीज, फित्री ग़िज़ाएं, फित्री दवाएं, इसकी तरफ इंसानियत को लौटाएं। मैं अपनी किसी दवा का इश्तिहार नहीं बता रहा कि आप मेरी ये दवा लें, मैं अपनी किसी चीज का इश्तिहार नहीं बता रहा, मैं तो वो चीज बता रहा हूं जो आपको मार्केट में आम मिल जाती है, वो चीज बता रहा हूं। हमारे कराची के एक दोस्त हैं, वो तावीज वगैरह भी देते रहते हैं। कहने लगे एक पाकिस्तान की फला मशहूर अदाकारा मेरे पास आई, फला मशहूर अदाकारा। कहने लगे जब मैं छोटा था तो उस वक्त भी वो जवान थी, आज मैं बूढ़ा हो गया हूं, वो भी जवान है। कहने लगे मैं बूढ़ा हो गया हूं, वो जवान है। तो मेरे पास एक दफा कहने लगे कि वो आई, कुछ अपने रूहानी कुछ मसाइल थे। तो मैंने कहा भाई मैं तो तुझे टीवी में बड़ा देखा मैंने तुझे, तू छोड़, तेरा मसला हल हो जाएगा, पहले अपनी जवानी का राज बता। वो आपको ही बता दो क्या राज। और अभी तक उसी राज में माई चल रही है, माई जिंदा है। पहले माई मुझे राज ही बता, क्या राज है, क्या राज है। उसने कहा मैं कोकोनट ऑयल और गरी से मेरी यारी है, दोस्ती है, नारियल से मेरी दोस्ती, हत्ता कि मैं खूब नारियल खाती हूं। और बाज़ वक़्त फिर ऐसा होता है इसका फायदा ज्यादा लेने के लिए इसका खालिस तेल निकलवा के इसकी क्यूब्स बना लेती हूं। ये बर्फ जमाने वाली क्यूब्स होती है ना, सांचे, सादा जबान में सांचे कहें, इन सांचों में तेल डाल के रख देती हूं, वो बर्फ बन जाते हैं, टुकड़े टुकड़े करके उनको निगल जाती है। मैं कोकोनट की तारीफ पढ़ रहा था। बाज इलाके ऐसे हैं, बाज दुनिया में, जहां बंदरों की उम्र 127 साल, 129 साल, 140 साल होती है। रिसर्च की साइंस ने रिसर्च करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि बंदर नारियल खाते हैं और बंदर के पास बेहतरीन हथियार नारियल होता है। बमबारी करता है अब नारियल की, जब नाराज हो जाए बमबारी करता है, नारियल तोड़ के फेंकता है। वो तो नारियल तो इतना सख्त होता है, खोपड़ी तोड़ देता है। बंदर बड़ा समझदार होता है, नारियल खाता है और नारियल का पानी पीता है। मैं कहने लगा तो छोड़ तेरे तावीज धागा मैं तुझे बाद में दूंगा, मैं ये बता तेरी जवानी का राज क्या है। उन्होंने कहा मेरी जवानी का नाज नारियल है, मैं फिट हूं, ना पेट ना वेट ना मोटापा ना झुर्रियां, कुछ भी नहीं, बस मेरी ग़िज़ाओं में नारियल है और उसका तेल है और नारियल है। मुझे हमारे किला डेरावर में सहराए बहावलपुर में वहां काजी साहब हैं, काजी अल्लाह दिता, बड़ी लंबी उम्र के, कहने लगे हमारे यहां एक सुजान सिंह होता था, डाकू सुजान सिंह, और वो डाके मारता था, लेकिन एक काम करता था, हर डाके के बाद वो नारियल की आग जरूर सेंकता था और उसके धुआं अपने जिस्म पे जरूर मलता था। काजी साहब कहते हैं मैंने उससे पूछा सुजान सिंह से, तू जो है ये अपना नारियल जलाता है और इसको जला के, क्योंकि ये हिंदुओं के मंदिर में नारियल जलाया जाता है, ये उनके मजहब का हिस्सा है, तो अपने ऊपर धुआं क्यों देता है। कहने लगा इसके धुएं में वो तासीर है कि मेरी जिस्म की भाग दौड़, डाके में भाग दौड़, कोई कुश्ती दंगा मुश्ती चोट उठना बैठना, डाके में सारा कुछ होता है ना, ये सब कुछ ऐसा है कि मैं फिर से सेहतमंद हो जाता हूं। खाने की जगह नारियल खाएं, मजा देखें, जबरदस्त मजा है। एक बार मैंने एक अंदाज से खाया, अब मैं बता रहा हूं, आग के मुंह में पानी आएगा, मेरे भी आएगा, मेरा नजर आएगा, आप सर नीचे कर लीजिएगा। ऐसा किया मैंने, नारियल के टुकड़े टुकड़े किए, टुकड़े टुकड़े करके उसका पानी, कराची में एक दोस्त लाए, पानी को डालने लगे, एक मैं कहा नहीं इसको एक कटोरी में डाला, डाल के मैंने फिर
मैंने कहा आज नारियल के पानी से नारियल खाता हूं। नारियल मुंह में डाला, छोटी छोटी साथ उसकी चुस्की ली, छोटी चुस्की ली, छोटी चुस्की ली, इतना मजा अजीब होगा। वहां बैठे बैठे एक साहब मुझसे कहने लगे मेरे एक दोस्त थे, उसको बेखाबी थी, रोजाना एक 81 जेनेक्स और पता नहीं लेक्सोटनल पता नहीं क्या गोलियां खाता रहता था। कहने लगे मैंने उसको बताया था, आपसे सुना था, ये नारियल खाए और पानी पिए, उसकी नींद की गोलियां छूट गई। अच्छा एक और इसका फायदा है, डॉक्टर साहब ने तो देखो, डॉक्टर साहब ने ठीक लिखा है, कैंसर का इलाज है, जो आखिरी दर्जे के कैंसर का इलाज हो सकता है वो छोटी मोटी बीमारियों का इलाज नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब ने तो आखिरी बीमारी का लिख के हम लोगों के लिए अक्लमंदी का एक भेद दे दिया, राज दे दिया कि सलाह आम है यारान नुक्तादां के लिए कि मेरी बात को समझो, जो चीज कैंसर के आखिरी दर्जे तक सेहत याबी का जरिया बन सकती है, वो कैंसर की आखिरी स्टेज को या आम छोटी बीमारियों के लिए सेहत याबी नहीं हो सकती। आम छोटी छोटी बीमारी, आप ये बताएं नारियल का फायदा क्या है? हर बंदा बताए एक फायदा, जिसको कोई मिला है तो बताए, बोले। कहते हैं नारियल खाने से पेट जितना मर्जी खराब हो ठीक हो जाता है। और किसी को फायदा? कमर में दर्द नहीं होता। चलो पहले मैं इसका मैं भूला हुआ था, इस वक्त डिस्क के मसाइल L4, L3, L2 हो रहे हैं, L डिस्क के मसाइल, और दुनिया में कमर का दर्द आलमी शोहरत ले रहा है। नारियल उसका इलाज है, बेहतरीन इलाज, डिस्क का, मोहरों का, कमर का इलाज। और किसी का फायदा? जी बेहतरीन बात कही, हामला खातून खाए, बच्चे गोरे चिट्टे सोने फीने बेहतरीन पैदा होते हैं। और सच है ये, बिल्कुल ठीक है, हामला औरत खाए, बच्चे खूबसूरत सेहतमंद। और यहां तक साइंस की रिसर्च है, और ये जिन इलाकों में नारियल ज्यादा होता है वहां की रिसर्च ये है कि जो हामला औरत नारियल खाएगी उसके बच्चे तवील उम्र होंगे, लंबी उम्र पाएंगे, बीमारियां उनके करीब नहीं आएंगी, सेहतमंद रहेंगे। हत्ता के बाज इलाकों में हामला औरत के लिए नारियल लाजिम है कि नारियल को खाए और उसी का जूस दूध की शक्ल में बच्चे को पिलाए। और किसी को क्या फायदा मिला? जी हाँ, कहते घर में सर में जो सीकड़ी होती है, अच्छा खत्म हो जाती है, कंघियों से निकाल रहे होते हैं, आप खुद इस्तेमाल कराते हैं। माशाल्लाह डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं खुद इस्तेमाल कराता हूं, डॉक्टर इसलिए मैंने जाती जानता हूं। जी फिर कहने लगे मैंने आपके रिसाले में पढ़ा है 5 औरत, ऐसी औरत जिसको सब ने कह दिया कि यह औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है, अगर वो मुस्तकिल जी भर के खाए तो वो औलाद पैदा करने के काबिल हो जाती। और किसी का फायदा? बोले निक्सीर, कहते हैं शर्तियां खत्म हो जाती है नाक की, निक्सीर। जी कहते हैं नारियल के तेल में अगर सफेद प्याज का पानी मिला के सर पे लगाएं तो जिनके बाल नहीं होते हो जाएंगे, और जिनके गिरते हैं ठीक हो जाएंगे, और बालों में शाइनिंग आएगी। कह रहे मेरा आजमूदा है। बात सुनो अल्लाह वालों, सुनो बात सुनो, बात यह है इसके जितने तजर्बात और फायदे बढ़ते जाएंगे आपका शौक बढ़ता जाएगा, लाहौर में नारियल खत्म हो जाएगा। लाहौरी तो अल्लाह माफ करे किसी चीज पे पड़े ना, आपने देखा नहीं लाहौर में गटर बंद होते हैं तो। लेकिन मैं एक मशवरा दूंगा, जिस तरह लाहौर में इंशाल्लाह नारियल है, कितने इलाके ऐसे हैं जहां नहीं है, इसको जिंदगी का हिस्सा बना, सेहत का हिस्सा बना। अब यकीन जानिए बड़ी बड़ी रंग बिरंगी दवाओं की, हत्ता के अबकरी की दवाओं की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अबकरी की दवाओं की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप नारियल खाएं, बादाम की गिरियां खाएं, और नारियल में बाज़ वक़्त उसको हल्की सी स्मेल आ जाती है, उसको पानी से धोए साफ हो जाता है, कोई स्मेल नहीं होती। ताज़ा नारियल की बात कर रहा हूं। और अगर नारियल खुश्क है और स्याह हो गया, खुश्क हो गया है, पानी में भिगो के रखें, लाजवाब हो जाता है, बेहतरीन हो जाता है नारियल। आज मैं नारियल की भजिया बताता हूं, मैंने सिर्फ एक दफा खाई, आप भी खा लें। बकरी के दूध में गुंदा हुई हो रोटी, बकरी के दूध या गाय के दूध में आटा गूंदा हुआ हो, मुश्किल नहीं, पानी की जगह दूध डाल दें, क्या हर्ज है। आटा गूंदा हुआ हो और खूब रसा हुआ हो, गूंद के बेहतरीन उसको मल के आटा, और 2-3 घंटे रख दें ऊपर मल का कपड़ा देकर, और नारियल के टुकड़े कर लें,
हल्के हल्के टुकड़े कर लें, बेहतरीन, इतने टुकड़े जितने अक्सर जर्दे मुतंजन में नहीं होते, चावलों में होते हैं ना, इतने टुकड़े कर लें। अब इन टुकड़े को सालन की तरह पकाएं और उसमें गोश्त हो छोटा या देसी मुर्गी का, उसको पकाएं। और घी कौन सा डालना है? नारियल का तेल, हल्का सा मिर्च मसाला डाल दें, प्याज डाल दें, टमाटर डाल दें, काली मिर्च, जीरा, दही डाल दें। ये सालन आप खा के देखिए, ये सालन खा के। और एक सेहतमंद पुलाव बताता हूं, सेहतमंद पुलाव। नारियल पुलाव में ज्यादा डालें, बहुत ज्यादा डालें, और उस सेहतमंद पुलाव खा के देखें। जो बंदे कहते हैं कि हमें चावल बादी कर जाते हैं, जिस्म बढ़ा जाते हैं, या गैस या कब्ज कर जाते हैं, कभी नहीं हो।